Hello students, welcome back. So here's the video of class 10 biology and this is the video in which we are going to discuss about some important questions taken from the endocrine system of chapter 2 control and coordination. So let's start. The first question is which of the following is not an example of an endocrine gland? इसमें से कौन सा जो ग्लैंड है वो एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल नहीं है? योर ऑप्शंस आर थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड एंड ओवरीज. So endocrine glands are those glands which discharge their secretion directly into the blood. And exocrine gland एक दूसरे टाइप का ग्लैंड होता है जिसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं. वो उनमें डक्ट्स होती हैं, वो डक्ट्स के थ्रू अपना ब्लड जो होता है अपना जो सिक्रेशन होता है वो ब्लड में ट्रांसफ़र करते हैं. तो देखिए यहाँ पे थायराइड ग्लैंड भी क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है. एड्रिनल ग्लैंड इज ऑल्सो एंडोक्राइन ग्लैंड. ओवरीज और ऑल्सो come into the category of endocrine gland, but this salivary gland is not endocrine gland because it has duct for the secretion. Okay, like you can see, this is the salivary gland found in your mouth. There are three pairs of salivary glands: parotid gland, submandibular gland and sublingual gland. And you can see these are the ducts. These are the ducts by which they secrete they discharge their secretion into your mouth. So they are having ducts, so they are exocrine glands. Next question is a chemical coordination in animal is operated by. Chemical coordination animals में कौन से chemical के through operate होता है? You have to tell. Neurotransmitter, enzyme, saliva, hormone. So you have studied in endocrine system that endocrine system includes the endocrine glands which secrete a chemical which is called chemical messenger, that is hormone. Okay, so chemical coordination in animal is operated by the hormones. You know that there are several endocrine glands found in your body, like your pituitary gland, pineal gland, parathyroid, thyroid gland, adrenal gland, pancreas, ovaries, testes. These are the endocrine glands which secrete a chemical which is called hormone. Next question is endocrine glands discharge their secretion directly into. एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने सिक्रीशंस को डायरेक्टली कहाँ पे डिस्चार्ज करते हैं? ब्लड में, अदर ग्लैंड्स में, साइनेप्सेस में, बोन्स में. सो यू हैव टू ऑप्ट. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स से भी जो भी सिक्रेशन डिस्चार्ज होता है, निकलता है, वो डायरेक्टली जो है वो ब्लड में सिक्रेट होता है. तो योर राइट आंसर इज़ ब्लड. ठीक है, दो तरीके के ग्लैंड हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन. एंडोक्राइन में जो सेल्स होती हैं वो डायरेक्टली अपना सिक्रेशन क्या करती हैं, ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र कर देती हैं. बट एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर क्या होता है, ये ग्लैंड्स एक डक्ट से, एक पाथवे से, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होते हैं. पहले अपना सिक्रेशन उस डक्ट में डालते हैं, फिर उस डक्ट के थ्रू वो सिक्रेशन जो होता है वो पर्टिकुलर लोकेशन पे डिस्चार्ज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स. हाइपोथैलेमस कौन से ग्लैंड को कंट्रोल करता है, कौन से ग्लैंड के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है? थाइमस, एड्रिनल कॉर्टेक्स, टेस्टिस, पिट्यूटरी. सो आई होप यू कैन choose the correct answer from here. Hypothalamus control the secretion of pituitary gland, so this is the right option. Okay, you know that the hypothalamus and pituitary is located in your brain. This is hypothalamus, this is hypothalamus, and it is connected with this pituitary gland. And the cells which are present in the hypothalamus, they discharge the releasing and inhibiting factor, and by these factors they control the secretion of pituitary gland. Okay, next question is antidiuretic hormone is discharged from. Antidiuretic hormone ADH कहाँ से secrete होता है? You have to tell. Pituitary gland, anterior pituitary, posterior pituitary, hypothalamus. Antidiuretic hormone को हम vasopressin भी कहते हैं. It is also called vasopressin. Okay, vasopressin या एंटी डायरेटिक हार्मोन कहाँ से डिस्चार्ज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस.
ठीक है। तो ये जो होता है वो डिस्चार्ज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, बनता तो वो हाइपोथैलेमस में है बट डिस्चार्ज जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैनक्रियाज इज अ टाइप ऑफ ग्लैंड। पैनक्रियाज कौन से टाइप का ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, नन ऑफ द अबव। ओके, पैनक्रियाज जो है वो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। ये पैनक्रियाज है, दिस इज योर पैनक्रियाज, दिस इज योर पैनक्रियाज जस्ट बीनीथ द स्टमक। ये पैनक्रियाज एक्सोक्राइन भी है क्योंकि ये एंजाइम्स को सिक्रीट करता है वाया डक्ट, और एज वेल एज ये हार्मोन भी सिक्रीट करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, डायरेक्टली इनटू द ब्लड। तो ये हार्मोनल ग्लैंड भी है एंड प्लस अदर केमिकल्स भी सिक्रीट करता है। तो ये डक्टलेस भी है, डक्ट और डक्ट के साथ भी है, तो इसलिए हम इसको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन स्टिमुलेट्स। ठीक है, ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये किसको स्टिमुलेट करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स को, एड्रिनल मेड्यूला को, थायराइड को, पैराथायराइड को। ACTH ये रिलीज होता है पिट्यूटरी से और ये जाकर एक्ट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स पर। ठीक है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यहाँ पे देखिए एड्रीनोकॉर्टिको, आप जानते हैं एड्रिनल ग्लैंड में दो, उसका अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं अगर एड्रिनल ग्लैंड का, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? आपके किडनी के टॉप पर दो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और उस पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे तो दो पोर्शन आपको दिखेगा। बाहर वाला पोर्शन क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स, और सेंटर वाला पोर्शन क्या कहलाता है? मेड्यूला। ठीक है, तो देखिए सपोज दिस इज़ योर किडनी, ये किडनी है, इसके टॉप पर यहाँ पर इस तरीके से पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है। ये कौन सा ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड है, दिस इज एड्रिनल ग्लैंड। ओके, अब इस एड्रिनल ग्लैंड को अगर आप अंदर देखेंगे तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन। आउटर पोर्शन इज कॉल्ड एड्रिनल कॉर्टेक्स, सेंट्रल पोर्शन इज कॉल्ड एड्रिनल मेड्यूला। तो ये जो ACTH हार्मोन है विच इज़ रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी, ये एक ट्रॉपिक हार्मोन है, तो ये दूसरे ग्लैंड पर जाकर एक्ट करेगा। ठीक है, करता तो ये एड्रिनल ग्लैंड पर एक्ट करता है, एड्रीनो है एड्रिनल, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड के कौन से पार्ट में? कॉर्टेक्स में कि मेड्यूला में? तो ये हार्मोन जो होता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स में पाई जाने वाली सेल्स को ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। तो आप इसमें ऑप्शन लगाएंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए तो उससे क्या होगा? हाइपरथायराइडिज्म, ग्वाइटर, गैगेंटिज्म, ड्वार्फिज्म, कौन सी बीमारी होगी? क्या होगा? यू नो दैट आयोडीन की कमी से एक डिजीज़ हो जाती है जिसको बोलते हैं ग्वाइटर, है ना। यू कैन सी ग्वाइटर में क्या होता है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वो क्या हो जाती है? ये देखिए नॉर्मल कंडीशन है थायराइड की, ये क्या होती है? ये थायराइड ग्लैंड क्या हो जाता है? एनलार्ज हो जाता है, इट बिकम्स एनलार्ज, और इस तरीके से हमारा थ्रोट क्या हो जाता है? सोलन हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं ग्वाइटर डिजीज। इट इज़ बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस आर फाउंड इन। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाए जाते हैं? पिट्यूटरी में, हाइपोथैलेमस में, गोनाड्स में, पैनक्रियाज में। ओके, they are found in pancreas। ठीक है, these are the cells which secrete the hormones। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से दो टाइप के जो है वो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ठीक है, पैनक्रियाज आपका एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। तो जो एंडोक्राइन पार्ट है पैनक्रियाज का दैट इज़ कॉल्ड आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में बहुत सारे टाइप की फिर सेल्स होती हैं। उन सेल्स से जो है, जो बाहर वाली सेल्स होती हैं और जो अंदर वाली सेल्स होती हैं, उन दोनों सेल से अलग अलग टाइप का जो होता है वो क्या होता है? वो हार्मोन सिक्रेट होता है। ठीक है, ये बाहर वाली सेल्स कहलाती हैं अल्फ़ा सेल कहलाती हैं, अल्फ़ा सेल, और जो ये सेंटर में होती हैं वो दो कहलाती हैं बीटा सेल। अल्फ़ा सेल जो होती है वो ग्लूकागॉन रिलीज़ करती है, ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन रिलीज़ करती है। जो बीटा सेल होती है वो इंसुलिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करती है। ठीक है, ये दोनों ही हार्मोन जो होता है
ये दोनों ही हार्मोन क्या करता है, आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन का क्या फंक्शन होता है? इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। ये दोनों ही सेम हो गया, इट विल बी डिक्रीज, ये डिक्रीज होना चाहिए। ओके, सो पैराथॉर्मोन क्या होता है? पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, कहाँ से सिक्रीट होता है? आपके पैराथायराइड ग्लैंड से। ये हार्मोन का काम क्या होता है? आपके ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करना। ठीक है, इट इंक्रीजेज द ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है, ये पैराथायराइड ग्लैंड है। देखिए, पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है वो आपके थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। दिस इज़ योर थायराइड ग्लैंड। ठीक है, जो आपके थ्रोट एरिया में प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स के नीचे, लैरिंग्स के जस्ट फ्रंट में। ठीक है, अब ये थायराइड ग्लैंड का फ्रंट व्यू है, दिस इज़ योर फ्रंट व्यू। ठीक है, अगर उसके पोस्टीरियर यानी कि बैक व्यू पे देखेंगे तो आपको इस तरीके से 4 नोड्यूल्स दिखेंगे। दीज नोड्यूल्स आर कॉल्ड पैराथायराइड ग्लैंड। यहीं से पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो सिक्रेट होता है और ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करने का काम करता है। सपोज़ करिए आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो गया तो ये पैराथायराइड हार्मोन आपके बोन के पास जाएगा, बोन में कैल्शियम होता है, बोन से कहेगा कि गिव मी calcium because it is devoid in the blood. Next question is which of the following hormones called as male sex hormone? कौन सा हार्मोन मेल सेक्स हार्मोन कहलाता है? एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, you know that this hormone testosterone is called male sex hormone and this hormone is responsible for the development of male character in the male body. Which is a trophic hormone? इसमें से कौन सा trophic hormone है? You have to tell. Thyroxine, adrenaline, insulin, thyrotrophin. So which is the trophic hormone? Trophic hormone क्या होता है? वो हार्मोन जो किसी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं या इफेक्ट करते हैं, उन हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक हार्मोन। एंड विच इज़ रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी, और जो कि कहाँ से रिलीज होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन, इनमें से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है? थायरॉक्सिन आप जानते हैं थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। एड्रेनालिन कहाँ से होता है? एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है। इंसुलिन पैनक्रियास से रिलीज होता है। थायरोट्रोफिन, यस, दिस इज़ द TSH। ठीक है, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी इसको बोलते हैं। ये क्या है? थायरोट्रोफिन। ये कहाँ से रिलीज होता है? पिट्यूटरी से। ठीक है, ये पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ये क्या, एक तरीके का ट्रॉफिक हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड पर जाकर क्या करता है? इफेक्ट करता है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रॉफिक हार्मोन, थायरोट्रोफिन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी से निकलेगा और आपके थायराइड ग्लैंड पर जाकर इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइगेंटिज्म इज कॉज ड्यू टू। गाइगेंटिज्म होता है, क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन? गाइगेंटिज्म मीन्स व्हेन आवर बॉडी ग्रोज more than the normal height. Okay, like you can see here, this man is showing the gigantism. Okay, this is the normal height and this is the gigantism. Okay, so here what is the reason of gigantism? You have to tell. Over secretion of growth hormone. GH stands for growth hormones. Okay, so over secretion of growth hormone, under secretion of growth hormone, no growth hormone, over secretion of epinephrine. Okay, this growth hormone is responsible for gigantism when it is over secreted. And do you know from where the growth hormone is secreted? Yes, from the pituitary gland. It is secreted from the pituitary gland. So your correct answer is over secretion of growth hormone. Now the next question is which of the following hormones is known as fight and flight hormone? Okay, fight and flight hormone is secreted from the
adrenal gland. Okay, this is secreted from the adrenal gland, and the hormone which is called fight and flight hormone, which prepares you in case of fight and flight condition, that is called adrenaline. Adrenaline is called as fight and flight hormone, so this is the right answer. Adrenaline secreted from the adrenal gland. This is adrenal gland which is present on the top of your kidney. Adrenal gland जो होता है वो किडनी के ऊपर टॉप पर ये इस तरीके का पिरामिड लाइक ग्लैंड होता है, एंड इट इज़ 2 in number present on each of the kidney. Okay, from here the adrenaline hormone is secreted. Next, 15. Target organs of follicle stimulating hormone. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टारगेट ऑर्गन कौन सा होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक तरीके का क्या है, ट्रॉफिक हार्मोन है, और आप जानते हैं कि ट्रॉफिक हार्मोन क्या करता है, किसी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को अफेक्ट करता है एंड कंट्रोल करता है. ओके, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टारगेट ऑर्गन क्या होगा? योर ऑप्शंस आर गोनाड्स, इंटेस्टाइन, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस. Okay, so follicle stimulating hormone are responsible to develop the gametes, ova and sperms. Okay, so you know that ova and sperms are produced by the gonads, ovaries and testes. So the target organ of follicle stimulating hormone is gonad. Gonads having male reproductive organ and male and female reproductive organ are collectively known as gonads. Ovaries in female and testes in male. Your next question is the hormone responsible for the regulation of metabolism of fats, carbohydrates and protein. Okay, out of these 4 hormones you have to tell that कौन सा हार्मोन जो है वो फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है. The options are vasopressin, adrenaline, glucagon and thyroxine. So you know that the thyroxine hormone, which is secreted out from the thyroid gland, it is responsible for the metabolism of fat, carbohydrate and protein. Now the next question is diabetes mellitus is caused due to deficiency of. diabetes mellitus जो होता है वो कौन से चीज़ की डेफिशिएंसी से होता है? जो ऑप्शंस आर thyroxine, growth hormone, insulin, adrenaline. So these all are types of hormones. तो कौन से hormones की deficiency की वजह से diabetes mellitus cause होता है? So this is the diabetes mellitus is the disease, is a type of diabetes in which there is a deficiency of insulin. ठीक है, diabetes mellitus जो होता है वो इंसुलिन की कमी से हो जाता है. इंसुलिन की कमी से जो ग्लूकोज होता है हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़. Okay, next question is which of the following endocrine gland is unpaired? कौन सा endocrine gland unpaired होता है? Okay, adrenal, testis, pituitary, ovaries. Okay, अभी आपने देखा adrenal gland जो होता है वो one pair होता है, ठीक है, और it is located on the top of the kidney. दोनों ही किडनी के टॉप पर यहाँ पर पाया जाता है, तो ये वन पेयर में होता है. देन टेस्टिस भी ये क्या होता है, वन पेयर में पाया जाता है. ओवरीज आर ऑल्सो फाउंड इन पेयर्स, ये भी पेयर्स में होते हैं. पिट्यूटरी इज़ नॉट इन अ पेयर, ये अनपेयर्ड होता है, ये पेयर में नहीं होता, इट इज़ वन इन नंबर. ओके, सो योर करेक्ट ऑप्शन इज़ पिट्यूटरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैल्सिटोनिन इज रिलीज्ड फ्रॉम. कैल्सिटोनिन रिलीज होता है कहाँ से रिलीज होता है? थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी, एड्रिनल ग्लैंड. Okay, from which gland this calcitonin hormone is secreted? Thyroid, parathyroid, pituitary, adrenal gland. So you know that thyroid gland से एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको बोलते हैं थायरॉक्सिन. ओके, एंड एक और हार्मोन थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है जिसको बोलते हैं कैल्सिटोनिन. दिस इज कॉल्ड कैल्सिटोनिन. सो योर राइट ऑप्शन इज थायराइड ग्लैंड. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज नेम द ग्लैंड एसोसिएटेड विद किडनीज. वो कौन सा ग्लैंड है जो किडनी से एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है? तो अभी हमने देखा था कि जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वो आपकी किडनी के ऊपर पाया जाता है, ठीक है.
दोनों ही किडनी के ऊपर, राइट एंड लेफ्ट दोनों ही किडनी के ऊपर टॉप पर जो है वो इस तरीके से पिरामिड लाइक एक ग्लैंड होता है. That pyramid gland is called adrenal gland. So your right option is adrenal glands. They are associated with the kidneys, and the hormone which is secreted from the adrenal gland, it is called adrenaline, which is also called fight and flight hormone. Okay, you can see here the location of adrenal gland here on the top of the kidney. Okay, you can see here this is the adrenal gland. Okay, so that's all for this video. Thank you. Have a nice day.